Hello students, welcome back to English class with Usha ma'am. Today we will continue with the 100 dresses part 2. Earlier we had done 100 dresses part 1. In continuation of the previous lesson, the 100 dresses 2 reveals why Wanda Petronsky had not been coming to school. The Petronsky family decided to move to a big city where no one would केयर अबाउट देयर अनफेमिलियर नेम। यहाँ पे वो कहते हैं कि उसके पापा उसे शहर लेके चले गए क्योंकि वहाँ कोई उसका मजाक उड़ाने वाला था ही नहीं, क्योंकि हर किसी का अजीब नेम था वहाँ। On hearing the note, Maddie and Peggy got anxious as they realized that they would never get a chance for making amends for all the teasing they had done. अब ये सुनकर पेगी और मैडी को फील हुआ कि हम अपने गलतियों का प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। We won't be able to change ourselves. Maddie and Peggy got anxious as they realized that they would never get a chance for making amends for all the teasing they had done. Both the girls get relieved only on learning that Wanda liked them and had dedicated one of the 100 dresses to each one of them. और अब उनको पता चला कि वो वांडा इनसे कितना प्यार करती है। Everyone was having a look at the amazing drawings Wanda had drawn and admiring it when the monitor of the class brought a piece of note for Miss Mason. Miss Mason read that note multiple times as she couldn't believe what was written in it. Finally, she decided to gather the class to read it loud and clear. अब जब सारे उसकी ड्राइंग्स को देख रहे थे, क्लास में एडमायर कर रहे थे, एक बच्चा जो मॉनिटर था वो मिस मेसन उनकी क्लास टीचर थी, तो आके लेटर देता है मिस मेसन को, और मिस मेसन वो पढ़ती है, काफ़ी बार वो पढ़ती है और उसको समझ नहीं आता कि क्या है। इट वॉज अ लेटर फ्रॉम वांडा पेट्रोन्स्की डैड। वांडा के पापा ने लेटर लिखा था। शी साइलेंस्ड फॉर अ वाइल which created tension in the minds of her students. थोड़ी देर के लिए चुप हुई तो सारे सोचने लगे कि क्या लिखा होगा। She adjusted her spectacles which made it clear how important that note is. अब उनको लगा मिस मेसन को कि ये जो लेटर है बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हें पढ़ के सुनाना चाहिए बच्चों को। She began reading it and everyone listened केयरफुली। सारे बड़े ध्यान से सुनने लगे कि मिस मेसन क्या पढ़ रही है और वांडा पेट्रोन्स्की के पापा ने क्या लिखा है। उसमें लिखा है, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जेक ऑल्सो, जेक उसका भाई था वांडा का, तो कहते हैं कि वांडा और जेक दोनों अब से स्कूल नहीं आएंगे। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम बड़े शहर शिफ्ट हो गए। नो मोर होलर पोलैक। होलर पोलैक मतलब कोई हमारे टीजिंग नहीं करेगा। नो वन विल पुल आवर लेग। नो मोर आस्क वाई फनी नेम। Plenty of funny names in the big city. Yours truly, जैन पेट्रोन्स्की। जैन पेट्रोन्स्की वांडा के पापा का नाम। कहते हैं हम बड़े शहर जा रहे हैं, वहाँ कोई इनको टीज करने वाला नहीं है। The letter began with a salutation to Miss Mason. Wanda's father conveyed his intention of not sending both of his children. अब जैन पेट्रोन्स्की ने मिस मेसन को कहा कि मेरे दोनों बच्चे जो है आपके स्कूल नहीं आएंगे। Wanda and Jake to school anymore. He mentioned that they were shifting to another city, a big one where no one would care enough about their strange name. A big city with a lot of people having weird names. हम बहुत बड़े शहर जा रहे हैं और वहाँ कोई किसी के नेम को लेके मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अजीब नेम्स मिलते हैं, तो no one will make fun of my children. Wanda's classmates thought her name was weird and funny. अब उनको लगा कि वाकई वांडा का नेम जो है अजीब है, फनी है। Wanda was a Polish immigrant to America and thus had an unfamiliar name. अब उनको लगा कि ये पोलैंड से आई है, पोलैंड से इमिग्रेट करके अमेरिका आई है, so she had unfamiliar name. After hearing what was there in that letter, everyone was left speechless. सारे हैरान हो गए जब सुना कि उन्होंने क्या लिखा था। Miss Mason too was stunned and thus she cleaned her glasses, wore them again and spoke to the class in a low voice. अब मिस मेसन को भी फील हुआ कि ऐसा क्या हो गया था हमारे स्कूल में कि उनको ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ा। She conveyed her disappointment to the class and asked them
to ensure her that nothing was done purposefully to hurt Wanda. अब वो बच्चों को ये कहती है कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है और उनको लगा और बच्चों को कह रही है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया जो वांडा को हर्ट किया हो. She gave the children benefit of doubt that everything they did was done unintentionally. बच्चों को कहती है मुझे पता है नादानी से नासमझ होकर तुमने ये गलतियाँ की. She said whatever happened was sad and unfortunate. She advised the students to introspect about it too. बच्चों को कहती है इस बारे में ज़रूर एक बार तुम सोचना. Everyone began thinking about what was written in that letter and how each one of them made Wanda feel. सारे सोचने लगे कि वांडा को कैसा फील हुआ होगा जब ये पापा ने ऐसा लेटर लिखा है. इसका मतलब बहुत फील किया उन्होंने. In the first period, Maddie couldn't concentrate on her studies as she felt sick for not stopping Peggy at the right time. अब उसको मैडी को फील हो रहा है कि यार मुझे पेगी को स्टॉप करना चाहिए था जब वो वांडा का मजाक उड़ाती थी. उसको फील हो रहा है. Had she stopped Peggy from playing the dress game with Wanda, things could have been different. कहते अगर मैंने पेगी को मना किया होता तो आज सीन कुछ और ही होता. Although Maddie never teased Wanda, but nor did she stop Peggy from doing it, which makes her just as bad or maybe worse. कहती है मैंने कभी वांडा का मजाक नहीं उड़ाया लेकिन मैंने कभी पेगी को भी मना नहीं किया कि वांडा का मजाक ना उड़ा. तो उसे फील हो रहा है. Peggy's intentions were never to hurt Wanda and she was not aware that her game hurt her feelings. अब पेगी को पता नहीं था इंटेंशनली उसने किया नहीं था, उसको हर्ट किया. वो तो वैसे मजाक के तौर पे उसने उसके साथ एक गेम खेला था. Maddie on the other hand was aware of its impact. Yet she stood silent which made her a coward for not standing against what's wrong. अब मैडी को लग रहा है कि मैं बूझदिल थी, डरपोक थी जो मैंने पेगी को स्टॉप नहीं किया था. Filled with guilt and regret, Maddie wished for a chance to apologize to Wanda. अब उसको फील हो रहा है. अब मैडी चाहती है कि पेगी जो है अपोलोजाइज करे वांडा से. Hoping Peggy would be thinking about Wanda too, she takes a look at Peg, but she was busy studying. अब मैडी को लगा कि जैसे मैं फील कर रही हूँ, सोच रही हूँ वांडा के बारे में, हो सकता पेगी भी ऐसे कर रही हो, सोच रही हो. लेकिन जब पेगी की तरफ देखती है, पेग जो है वो अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रही होती है. Regardless of what Peggy was thinking, Maddie decided to take some action. अब वो सोच रही कि मैं अब एक्शन लूँगी. She hoped Wanda hadn't yet moved away and she could tell her how sorry she was and appreciate her 100 dresses. अब उसको लगता है कि मैं जाके वांडा से सॉरी कहूँगी और उसका 100 ड्रेसेस को अप्रेस करूँगी. That day after the school had ended, Peggy asked Maddie if they could go and check if Wanda has moved or not. अब कहती है पेगी को चल जाके हम देखते हैं कि वांडा अभी यहीं है या शिफ्ट हो गया. Maddie was satisfied at the thought that they both had some plans of apologizing to Wanda. Both of them hurried to Boggins Heights. Boggins Heights जहाँ वांडा रहती है तो दोनों वहाँ जाते हैं. The place where Wanda lived in order to find her. During this season का मतलब rainy season, the place was generally wet and the atmosphere was sad and hopeless. और जाने की प्रॉब्लम थी क्योंकि बारिश हुई थी और जगह भी वेट था. बॉगिंस हाइट वैसे कीचड़ से भरा होता है. Peggy tries to comfort herself by murmuring that at least she didn't call her a foreigner because she was an immigrant. अब पेगी को लगता है कि मैंने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया और उसको खुद को सेटिस्फाई होता है कि कभी मैंने उसको पॉलिश इमिग्रेंट करके मजाक नहीं उड़ाया, अपने आप को कह रही. Neither did she make her feel different for having an unfamiliar name. She was always in this delusion that Wanda had no idea that those girls were making fun of her. अब उसको यही लगता है कि वांडा को ऐसा लग रहा हो कि हमने कभी उसका मजाक उड़ाया नहीं. अब ऑल वांडा इज सच अ ग्रेट आर्टिस्ट. सोचती है अपने आप पे की सोचती है कि वांडा कितनी अच्छी आर्टिस्ट है, उसमें कितनी अच्छे क्वालिटीज़ हैं. मैडी ऑन द अदर हैंड कुडंट से अ वर्ड. मैडी अब कुछ बोल नहीं सकी, डंप हो गई. What she hoped for is a chance to confess, make amends, appreciate her and try to stop her from moving away. अब उसको यही था मैडी को कि मैं जाके उसे कन्फेस कर दूँगी, अपनी गलती का एहसास करूँगी और मैं अमेंड्स करूँगी, अपनी गलतियों को सुधारूँगी और उसके ड्रेसेस को अप्रिशिएट करूँगी और उसे कहूँगी कि तू यहाँ से ना जा.
In fact, she even thought of conveying her idea to protect Wanda if anyone tried to trouble her in any way in order to reach the place before night. They hurry. वो सोचती है कि उससे कहूँगी कि अब मैं किसी और को भी तेरा मजाक उड़ाने नहीं दूँगी और फटाफट वहाँ निकल पड़ते उसके घर के लिए. They saw a white little house up there which they thought was the place where Wanda Petronsky lived. वहाँ जाके देखते हैं कि एक छोटा सा वाइट घर है जहाँ वांडा रहती है. The house and its surroundings were shabby but clean, just like Wanda's worn out blue dress. उसका घर भी उसके ब्लू ड्रेस के जैसे ही था. ब्लू ड्रेस तो जो था उसका शैबी था लेकिन क्लीन था. उसका घर भी ऐसे ही था. Just like Wanda's worn out blue dress. Thin bushes of grass grew along the path that led to the house. They resembled thin kittens. अब उसके घर के आसपास घास उगे हुए थे जैसे kittens हों छोटे छोटे. No one could be seen around the house. They knocked both at the front and backyard doors, but to their disappointment there was no answer. आगे से पीछे से दोनों तरफ से नॉक करते हैं, कोई जवाब नहीं आया. Now the Petronskis had gone and along with them Maddie and Peggy's last chance to make amends too. अब उनको लगा कि वो यहाँ से चले गए और अब हम कभी भी अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे. तो उनको फील होता है दोनों को, पेगी को और मैडी को, और वापस आने लगते हैं वहाँ से. In order to comfort herself, Peggy started saying that Wanda must have looked for drawing inspiration only after she started her dresses game. अब पेगी को लगता है कि पेगी अपने ऊपर क्रेडिट दे रही है कि मैंने अगर एक ड्रेस गेम ना स्टार्ट किया होता तो कभी वांडा इस कंपटीशन को सीरियसली ना लेती और ना वो इंस्पायर होके ये कंपटीशन जीतती. And hadn't she done that, Wanda would have never won the drawing competition. अब अपने आप को क्रेडिट दे रही है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो कभी भी वांडा ये कंपटीशन नहीं जीतती. तो she takes the credit on herself. Maddie also tried to convince her after what Peggy said that if this is the case, she doesn't have to feel so bad. मैडी भी कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें फील करने की ज़रूरत ही नहीं है. इसका मतलब तुमने उसको कंपटीशन के लिए बूस्ट किया था. But later that night she couldn't sleep as she was thinking constantly about Wanda's little house, her faded blue dress, both shabby but clean, and her glorious 100 dresses that were all lined up in the classroom instead of the closet. अब उसके दिमाग में फिल्म के जैसे सारी बातें घूम रही है मैडी की, उसके ड्रेस, उसका घर, और जैसे उसको मजाक उड़ाते थे सब कुछ. Finally she sat in her bed and started thinking deeply. अब वो अपने बेड पे बैठ के सोचने लगी. The hardest she'd ever done. She pressed her forehead tight in her hands, which indicated that she was really trying to concentrate. अब अपना दिमाग को दबा रही, सिर दबा रही है ताकि concentrate कर पाए. After thinking so much and so deeply, she came to a conclusion that she will always stand against the wrongs and will never say nothing when she has to. अब वो सोचती है कि कभी भी मैं गलत नहीं कहूँगी किसी को भी, और अगर किसी के साथ गलत होता है तो मैं उनको स्टॉप करूँगी. कभी भी किसी का मजाक उड़ाते हुए नहीं देखूँगी, ना किसी को किसी का मजाक उड़ाने दूँगी. So she was thinking this. She decided that she'd never let anyone make fun of others because of their appearance, name, clothes or where they come from. अब वो सोचती है कि मैं कभी भी किसी को किसी का मजाक उड़ाने नहीं दूँगी, चाहे उनकी शक्ल जैसे मर्जी हो, उनका नेम जैसा मर्जी हो, कपड़े जैसा मर्जी हो, या कहीं से भी आए हो, मैं कभी भी किसी को मजाक उड़ाने नहीं दूँगी. She would not shy to speak up against Peggy. कहते अब मैं पेगी से बात करूँगी, अब मैं शर्माऊँगी नहीं. Even if it meant losing a friendship, चाहे हमारी दोस्ती टूट जाए, मैं पेगी को कहूँगी कि तूने गलत किया. She could not go in the past to make amends with Wanda, no matter how much she wanted to. But from now on, she's never going to let another person feel embarrassed or unhappy again. कहते मैं वांडा के पास तो जा नहीं सकती, लेकिन कभी भी किसी के साथ दूसरा वांडा बनने नहीं दूँगी. On Saturday, both of them sat together and decided to write a letter to Wanda, telling her about the contest, asking her where she is living now and how that place is. अब उसने सोचा कि मैं उसको लेटर लिखूँगी, पूछूँगी तू कैसी है, और कॉन्टेस्ट के बारे में भी उससे बताऊँगी कि तूने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, और उससे पूछूँगी
जिस प्लेस में गई वो प्लेस कैसा है. No matter how much they wanted to apologize, they couldn't summon the courage to do so and thus ended up writing a friendly letter as if Wanda was their good friend. अब उन्होंने बहुत सोचा कि उसको अपोलोजाइज करें लेकिन नहीं हो सका तो अब वो लेटर के थ्रू कर रहे. दे मेल्ड इट टू बॉगिन्स हाइट्स. लेटर लिख के उन्होंने बॉगिन्स हाइट्स पोस्ट किया. There was no reply from Wanda, but they didn't also receive the letter back. Thus, they concluded that it must have reached Wanda, but she was so upset that she didn't answer. They waited for weeks, but still no answer. उन्होंने उसके लेटर का रिप्लाई के लिए वेट किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला. तो उनको लगा कि हो सकता है उसके पास लेटर पहुंच गई. Peggy began to forget about this whole thing while Maddie used to make scenarios in her head before sleeping where she defended Wanda. Peggy तो ये सारी बातें भूल गई और मैडी के दिमाग में वो सारी बातें दौड़ रही है मूवी के जैसे. She thought of scenarios where large groups of girls surrounded Wanda and would ask her. उसके दिमाग में वही बातें याद आती थी जब वांडा को सारे घेर के सारे गर्ल्स उसे क्वेश्चन पुट करते थे. हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट? एंड एज सून एज एनीवन कुड से मोर वांडा वुड इंटरप्ट एंड से स्टॉप. और जब भी उसको इरिटेशन होती थी जो वांडा को तो वो स्टॉप कहती थी सो दैट ऑल ऑफ देम कुड एंड अप अशेम्ड, ताकि उन सबको शर्म फील हो, शर्म महसूस हो. सो ये सारी बातें वो याद कर रही है. It was winter season and there was snow everywhere on the ground. Christmas had come. They decorated their classrooms with bells and a small tree. That Miss Mason told the students that she had received a letter from Wanda Petronsky. तो क्रिसमस का डे था, उन्होंने अपने क्लासरूम डेकोरेट किया था, क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया था और मिस मेसन एक लेटर के साथ आती है और वो कहती है कि वांडा से एक लेटर आया है. शी इज़ वेरी हैप्पी टू रिसीव इट बिकॉज नाउ शी कैन सेंड हर द मेडल टू. टीचर बहुत खुश होती है कि अब उसका लेटर आ गया, अब उसका एड्रेस भी पता चल गया, अब उसको मेडल भेज सकती है. उसमें लिखा था डियर मिस मेसन हाउ आर यू एंड रूम 13 जिस क्लासरूम में वो पढ़ती थी. प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly वांडा पेट्रोन्स्की. तो वो कहती है कि ये जो ड्रेस है ग्रीन ड्रेस वो पेगी को दे देना और जो ब्लू ड्रेस है वो उसको मैडी को दे देना. द लेटर बिगेन इन अ वेरी फ्रेंडली टोन. वांडा आस्क्ड हाउ एवरीवन वाज. पूछती है सब कैसे एंड दैट दे कुड कीप 100 ड्रेसेस बिकॉज इन हर न्यू हाउस शी हैज़ अनदर लॉट ऑफ 100 ड्रेसेस लाइंड अप इन हर क्लोसेट. कहते हैं मेरे नए घर में मेरे क्लोसेट में मेरे कबर्ड में 100 ड्रेसेस बहुत सारे लाइन अप हुए हैं मेरे कबर्ड में, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ये उन गर्ल्स को दे दो, पेगी और मैडी को. नाउ शी स्पेसिफिकली मेंशन द ड्रेस शी वांटेड मैडी एंड पेगी टू टेक होम. अब उसने स्पेसिफिक मेंशन किया था कि कौन सा ड्रेस मैडी लेके जाएगी और कौन सा पेगी. द ग्रीन ड्रेस विथ रेड ट्रिमिंग्स वॉज फॉर पेगी वेल द ब्लू वन वॉज फॉर मैडी. तो जो ग्रीन ड्रेस है वो पेगी के लिए है और जो ब्लू ड्रेस है वो मैडी लेके जाएगी. शी एक्सप्रेस्ड हर अफेक्शन टुवर्ड्स मिस मेसन एंड रोट हर न्यू टीचर कुड नेवर रिप्लेस मिस मेसन. अब वो लेटर में लिखती है कि मिस मेसन के जैसे कोई टीचर होगी नहीं, मैं अपने मिस मेसन को मिस कर रही हूँ. She winded up the letter by wishing everyone Merry Christmas and also wrote that she missed everyone in room number 13. और वो कहती है कि मैं रूम नंबर 13 को मिस करती हूँ और सबको मेरी क्रिसमस विश करती है. सो शी इज़ हैप्पी ओवर देयर. इट वॉज क्रिसमस सीजन एंड ऑल द हाउसेस वर डेकोरेटेड. ग्रोसरी स्टोर्स वर स्टॉक्ड विथ क्रिसमस ट्रीज, कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स एंड अदर क्रिसमस स्टफ. सारे शॉप्स जो है वो सारे डेकोरेटेड थे. The atmosphere was colorful and joyful. Maddie and Peggy took home the drawings very carefully when Peggy realized that this gesture implied that Wanda liked them. अब इनको लगा, मैडी को लगा कि वो कितना हमें प्यार करती है, चाहे हमने उसका मजाक उड़ाया हो, लेकिन वो कितनी केयरिंग है, कितनी कंसर्न्ड है हमें लेके
कि उसने अपने सारे ड्राइंग्स हमें डेडिकेट कर दिया। जो 2 ड्रेसेस है वो पेगी और मैडी के नेम कर दिया। सो शी वॉज फीलिंग सो हैप्पी मैडी, और उसको फील भी हो रहा है कि हमने उसके साथ कैसे ट्रीट किया और वो हमारे साथ कितनी पोलाइटली बिहेव कर रही है। They also assumed that she got their letter and everything was peaceful between them. मैडी ये भी सोचते कि हो सकता है हमारा लेटर भी उसे मिल गया हो। मैडी on the other hand was quite sad because she would never be able to see that polished tight-lipped girl again. अब उसको ये लग रहा है मैडी को कि हम कभी उसको मिल नहीं सकेंगे। She would never get a chance to make amends. कहते हैं मुझे कभी चांस नहीं मिलेगा अपने आप को करेक्ट करने का, अपने आप को रियलाइज़ करवाने का, सॉरी फील करने का। सो शी इज़ फीलिंग बैड। As soon as Maddie reached home, she displayed her drawings on that part of the wall from where her pink flowered wallpaper was slightly torn. अब मैडी घर जाती है और ब्लू ड्रेस को अपने वॉल पे हैंग करती है। वहाँ उसके वॉल्स ख़राब थे, उसके कमरे के वॉल्स ख़राब थे। उसने पिंक फ्लैट वॉलपेपर लगाया हुआ था, तो वहाँ हल्की सी फटी हुई थी वो पेपर, उसके ऊपर जाके उस ड्राइंग को डिस्प्ले करती। मैडीज रूम वॉज शैबी टू बट द ड्राइंग मेड इट लाइवली। रूम गंदा था लेकिन वो ड्रेस जो है, पेंटिंग जो है वहाँ लगाया तो वो कलरफुल लगने लग गया और अच्छा लगने लगा। She stared at the drawing constantly and thought how nice Wanda had been to them. ड्राइंग को वहाँ उसने पेस्ट कर दिया और सोचने लगी कि वांडा कितनी अच्छी है, हमने उसके साथ कितना गलत किया लेकिन उसने हमारे साथ कितना अच्छा किया, उसने हमें गिफ्ट दिया है। So she started thinking about Wanda. Always Wanda was roaming in her thoughts. While staring at the drawing, Wanda had given her Maddie's vision got blurred from tears. अब वो ड्राइंग को स्टेयर कर रही होती है तो उसको सोचते सोचते आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो जो फिगर है वो धुंधला होने लगता है क्योंकि आंसू भरे हुए हैं उसकी आंखों में। She rubbed her eyes and noticed that Wanda had actually drawn Maddie's face along with the dress. जब उसने आइस रब किया, ध्यान से देखा, तो उसे लगा कि वांडा ने मैडी का फेस ड्रॉ किया हुआ है उस ब्लू ड्रेस में। The colors of the dress were so bright and vibrant that the face was hardly visible. कलर इतना वाइब्रेंट था तो फेस नहीं नजर आया। मैडी got excited and ran towards Peggy to check if she had noticed it too. उसकी पेगी के पास भागती है और उससे पूछती है कि क्या तूने कुछ नोटिस किया अपने ड्राइंग में। As soon as she reached Peggy's house, she asked her for the picture. जैसे वो वहाँ पहुँचती है, पेगी को कहती है अपना ड्राइंग दिखा, स्केच दिखा। द ड्राइंग वॉज लाइंग अपसाइड डाउन ऑन द बेड। उसने उल्टा करके रखा हुआ था अपने बेड के ऊपर पेगी ने। मैडी रेज्ड इट एंड यस इट वॉज पेगी इन दैट ड्राइंग। जैसे उसने उठाया, हाँ, कहती है तेरी शक्ल ड्रॉ की हुई है इसमें उसने। बोथ वेयर लेफ्ट इन शॉक एंड ऑ एट द सेम टाइम। दोनों हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, ये क्या हुआ, उन्हें पहले क्यों नहीं दिखाई दिए इस स्केचेस में उनका फेस। जब मैडी कहती है तो दोनों हैरान हो जाते हैं। पेगी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज राइट अबाउट द थॉट दैट वांडा लाइक देम। पेगी कहती है देख मैंने कहा था ना वांडा हमें प्यार करती है, लाइक करती है। मैडीज आईज गेट फिल्ड विद टीयर्स एवरी टाइम शी रिकॉल्ड दैट सीन वेयर वांडा वुड लुक एट द गर्ल्स लाफिंग एट हर ऑल्सो एग्रीड विद पेगी। अब वो पेगी के बात से भी एग्रीड है और वो बातें याद करती है जब वांडा को सारे गर्ल्स सराउंड करके मजाक उड़ाते हैं और उसकी आंखों में आंसू होता है, तो ये सारी बातें उसको चुभती है, गिल्ट फील होती है कि हमने क्यों इतना गलत किया उसके साथ। राइट, होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, so please do your assignment in your notebook and go through the chapter once again for the thorough understanding of the chapter. Stay home, stay safe. Thank you.